Hello everyone, welcome back to the Mark Dasak. So as you people are aware that we are doing the important quick revision series of the important themes for our upcoming examination. So in this we are already done with the environment related themes and today environment related concepts. So today as you people are know that we started the histories important themes related topic related the subject. So today we are going toward the next session, next episode of this series. In this episode we will going to do the next set of the important terms and description of these terms that is required for your upcoming examination. You will directly found questions from these lectures that I am providing you. Okay, so please take maximum benefit out of these lectures. Okay, so we will start with the administrative terms of the imperial cholas of South India. So basically Chola Empire was divided into Mandalam, that is provinces. फिर हो गया वलन नाडु. वलन नाडु इज बेसिकली कमिश्नरी, है ना. फिर हो गया नाडु. नाडु इज डिस्ट्रिक्ट्स. देन आप द खुर्रम. खुर्रम इज द ग्रुप ऑफ विलेज. यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. हो गया. फिर हो गया वेलान वागी. वेलान वागी इज बेसिकली लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण प्रिस्ट, पीजेंट, अप्रोप्रिएट, है ना. देन आफ्टर ब्रह्मदेया. ब्रह्मदेय इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ब्राह्मणों को दिया गया, दैट इज द गिफ्टेड लैंड टू द ब्राह्मणास. फिर हो गया साला भोगा. साला भोगा इज बेसिकली लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल, है ना. उसको साला भोगा बोलते थे, जो भी क्वाइट इंपॉर्टेंट है. फिर हो गया देवदाना. देवदाना तिरुनामातु कन्नी. तिरुनामातु कुन्नी, दैट इज द लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल. देवदाना. देवदाना देव को दान की हुई. ओके. फिर हो गया पालीच. पालीच चांदम, बेसिकली द लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशंस. फिर हो गया देन आफ्टर अलुंग. अलुंग नाटर. अलुंग नाटर इज बेसिकली एग्जीक्यूटिव कमिटी हो गया. फिर हो गया अंजू वनम. अंजू वनम इज द बेसिकली द फॉरेन मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, ऑर्गेनाइजेशन है. फिर इकोनॉमिक टर्म हो गई रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, ओके, टू द इंपीरियल चोलाज ऑफ साउथ इंडिया. दैट इज पहला हो गया Agrahata. Agrahata is quite important. This is asked in previous year papers, previous year questions, and repeated, I think, multiple times in different examinations. So you have to remember this. It's a Persian wheel था. फिर हो गया ईदानगी. ईदानगी is related to, मतलब important है. Basically caste grouping है, consisted mainly of artisans and trading group. Okay. फिर हो गया वलनगी. वलनगई. वलनगई is basically the caste grouping consisted mainly of agriculture group. That is about the वलनगी. फिर हो गया कदमई. कदमई is basically the land revenue. Okay. फिर हो गया Kumana Chacheri, basically related to artisans quarter. That is quite important for your examination. It is crucial that you have to remember the start terms that is very crucial for your upcoming exam. You can't miss this. Okay. Next is the Sala Bhoga. Sala Bhoga is the tenures meant for educational purposes. Basically, Sala Bhoga हमने अभी भी पढ़ा था. It is related to the schools and education. And next is the Valalas. Valalas is the farming group. फिर हो गया वलना. वलनजीआर. वलनजीआर is basically merchant guild हो गया. फिर हो गया वरियाम. वरियाम is the committee of merchant. फिर हो गया वेला. वेला is the people practicing agriculture. फिर हो गया वेती. वेती is the force labor. And you have to tell me विस्टी. विस्टी क्या था? विस्टी. Okay, so you have to remember the visti kya tha, and you have to tell me in the comment section. Okay. Next is the hundi, that is asked in a UPSC examination. Okay. Hundi is basically a negotiable instrument like a bill of exchange or promissory note. That is the hundi. Okay. Next is the perund. पेरुंदनम. फिर हो गया एंड सिरुंदनम. पेरुंदनम वर हाई ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स थे, वाइल सिरुंदनम वर लोअर ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स थे, है ना. फिर हो गया उर. उर इज बेसिकली असेंबली ऑफ विलेज हो गया. फिर नाडू. नाडू इज बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हो गया. फिर हो गया कड़ागाम. कदागाम. कदागाम इज बेसिकली कैंटोनमेंट हो गया. फिर हो गया महासभा. महासभा इज द गैदरिंग ऑफ एडल्ट मेल
men in the Brahmana village which were called Agraharas, है ना. फिर हो गया अग्रहारिका. अग्रहारिका इज बेसिकली द ब्राह्मण सेटलमेंट और लैंड ग्रांट अग्रहारा रिसिपेंट टिपिकली फॉर रिलीजियस एंड स्कॉलरली ड्यूटीज. उसको बोलते थे अग्रहारिका. दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, दैट आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स. ओके. फिर हो गया मंडलम. मंडलम इज इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोविंसेस. फिर हो गया मणिग्रामम. मणिग्रामम इज द ग्रेट नगरम. फिर नाडु खुर्रम कोटम इज द ग्रुप ऑफ विलेजेस. फिर हो गया नाना देसीज. नाना देसीज इज द मर्चेंट गिल्ड हैविंग वाइड नेटवर्क. फिर हो गया पाराचेरी. पाराचेरी इज बेसिकली द आउटकास्ट हेमलेट हो गई, उसको पाराचेरी बोलते थे. देन आफ्टर द पूरा पुरावू वारिती निकलम, बेसिकली द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, उसको बोलते थे. फिर हो गया तेंकुरम. तेंकुरम है ना, तेंकुरम बेसिकली ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर टाउन एंड टाउनशिप्स है. फिर हो गया उदान कुटम. उदान कुटम इज द हायर ऑफिसर्स एंड अपर पेरुंदनम एंड लोअर पेरुंदनम, है ना. ओके. नेक्स्ट इज द मिसलेनियस टर्म्स. सम मिसलेनियस टर्म्स, दैट इज the Kekai Kol Perum Padai, basically the royal troops receiving regular pay from the treasury, है ना. Comprise infantry, cavalry, elephant corps and the navy. Okay. Next is the Natam. Natam is the residential part of the village. Okay. फिर हो गया Natupadai. Natupadai is the militia main employed only for local defense हो गया. फिर हो गया शशांक गना और गनम, बेसिकली द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ उर, है ना. देन आफ्टर हो गया सुदुगाडू. सुदुगाडू इज द बर्निंग ग्राउंड. ओके. फिर हो गया तानीयूर. तानीयूर इज ए ना वेरी लार्ज विलेज administered as a single unit, that is the Taniyur. Okay. Next is the Veriyar. Veriyar is the reporters hired by the Sabha. फिर हो गया वेलईकरण. वेलईकरण इज बेसिकली ट्रूप्स रेडी फॉर टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ द रॉयल फैमिली, उनको बोलते थे वेलीकरण. फिर हो गया इरा इरीपाती, है ना. एरीपाती. इरीपाती इज बेसिकली लैंड रेवेन्यू विच was set apart for the maintenance of village tank. Okay, that is asked in UPSC exams or previous year papers, so you have to remember this. फिर हो गया गटिकास. गटिकास is basically college generally attached to the temples, उनको गटिकास बोलते थे. So next we are moving towards the medieval history, and we will, in this we are going to do the Delhi Sultanate. Delhi Sultanate's terms are quite important for your upcoming examination, as it is asked multiple times in UPSC examination as well as state examination and SSCs. You may find questions directly in every examination from the Delhi Sultanate terms. Okay. फिर पहला हो गया दारुल सीफा. दारुल सीफा इज बेसिकली हॉस्पिटल फॉर पुअर्स. फिर हो गया दीवान ए अमीर कोई. दीवान ए अमीर कोई इज द डिपार्टमेंट फॉर एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ कल्टिवेशन. देन इज नेक्स्ट इज द दीवान ए काजा ए मामलिक. बेसिकली ये डिपार्टमेंट है बेसिकली जस्टिस से रिलेटेड, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है. देन आफ्टर द दीवान ए खैरात. दीवान ए खैरात इज बेसिकली चैरिटी. खैरात इज बेसिकली चैरिटी से रिलेटेड है. फिर दीवान ए इंसा. इंसा इज बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस हो गया. फिर दीवान ए बंदकान इज डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव हो गया. फिर दीवान ए मुस्तक राज बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ टू रियलाइज द एरियस. फिर हो गया दीवान ए रसालत इज द डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स हो गया. फिर दीवान ए अर्ज हो गया डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री. फिर हो गया दीवान ए वजरियात इज बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस. फिर हो गया मुस्तक राज इज बेसिकली है ना ऑफिसर टू कलेक्ट द रेवेन्यू हो गया. फिर ग्रही हो गया, दैट इज द हाउस टैक्स हो गया. फिर चारी हो गया, दैट इज द पास्चर टैक्स हो गया, टैक्स हो गया. फिर हो गया किस्मत खुती, बेसिकली द हेडमैन सेस हो गया. फिर हो गया वक्त हो गया, दैट इज लीजियस इंडोमेंट हो गया. देन नेक्स्ट इज द मुकद्दम और कूट, दैट इज द विलेज हेडमैन, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. ओके. फिर हो गया सहना ए मंडी और दीवान ए रियासत, बेसिकली ऑफिस टू रेगुलेट फिक्स्ड मार्केट प्राइजेस. फिर हो गया
नायब ए रियासत, बेसिकली ऑफिसर अंडर द दीवान ए रियासत। फिर हो गया बरीद, हो गया इंटेलिजेंस ऑफिसर, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, हो गया इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड देन आफ्टर द मुनी, मुनहियान, मुनहियान इज द ना सीक्रेट स्पाई, हो गया अमीर ए, आमिर ए तुजुक, तो अमीर ए तुजुक इज द मास्टर ऑफ सेरेमनीज है। फिर अर्ज ए मामलिक, अर्ज ए मुमलिक, बेसिकली हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट, हो गया। फिर अमीर ए आखुर, बेसिकली द डिपार्टमेंट ऑफ रिलेटेड टू हॉर्सेज, हो गया, है ना। ऑफिसर कमांडिंग रॉयल हॉर्सेस, हो गया आमिर ए आखुर, आखुर इज रिलेटेड टू द हॉर्स, सो यू कैन रिमेंबर दैट आमिर ए आखुर इज रिलेटेड टू द ना हॉर्स, कमांडिंग ऑफ द हॉर्स, ओके। फिर हो गया आमिर ए बाहर, बाहर बेसिकली ऑफिसर और इन चार्ज ऑफ द ट्रांसपोर्ट, नेवल पोर्ट। वजीर हो गया प्राइम मिनिस्टर, ओके। फिर बरीद ए मामलिक, हो गया हेड ऑफ द स्टेट न्यूज एजेंसी। दाहिर ए मामलिक हो, मुमलिक हो गया हेड ऑफ द रॉयल करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट, दीवान ए इंसा से रिलेटेड है। फिर हो गया मंजली से आम, बेसिकली काउंसिल ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑफिसर्स कंसल्टिंग ऑन द इम्पोर्टेंट affairs of the state, जो कि currently we can say the kitchen cabinet of the USA, okay। So that is next is the miscellaneous terms, that is the Ghazi, Ghazi is basically Muslim fighter against the non-Muslim। फिर हो गया उलेमाज, बेसिकली स्कॉलर्स ऑफ द इस्लामिक सेक्रेड लॉज। फिर हो गया जहांपना, जहांपना इज बेसिकली प्रोटेक्टर ऑफ ऑल द वर्ल्ड। फिर हो गया तकवी, तकवी इज द लोन टू द फार्मर्स एंड कल्टिवेटर्स, दैट आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। फिर हो गया मलिक अस सर्क, बेसिकली द लॉर्ड ऑफ द ईस्ट, ऑल्सो नोन एज मलिक ए सर्क। फिर हो गया मुसरी पे मुमलिक, बेसिकली अकाउंटेंट जनरल, हो गया। नायब वजीर इज द डिप्टी मिनिस्टर, हो गया। काजी हो गया लीगल ऑफिसर, हो गया डिस्पेंसिंग सरिया लॉज, है ना, काजी करता था। फिर हो गया कुलहदारन, कुलहदारन इज द सैयद, है ना, सैयद पुट ऑन द पॉइंटेड केप कुल्हा, एंड दे वर नोन एज द कुलहदारन ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। कुलहदारन यानी कुल्हा यानी की द पॉइंटेड केप, धारण यानी कि जो धारण करता है, जो पहनता है, सो दे आर कॉल्ड द कुलहदारन, जो कि बेसिकली सैयद्स को बोला गया था। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एज इट इज asked in previous year papers, so remember this, okay। Next is the military terms, that are chehra, chehra is basically a detailed description of each soldier। Dag is the branding of the horses, basically during the Alauddin's time, Dag is quite famous, okay। Okay, next is the provincial officer. Provincial officer is the Amil, that is the revenue officer, quite important. Khwaja is the account keeper. Next, Mukti or Wali is the basically provincial governor or Iqtadar। फिर हो गया मुफ्ती is the law expounder। कोटवाल बेसिकली सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, हो गया। फिर काजी उल काना काजत, हो गया बेसिकली हेड ऑफ द चीफ जुडिशियल डिपार्टमेंट। फिर हो गया सदर ए जहाँ बेसिकली ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ रिलीजियस मैटर्स एंड इंडोमेंट, उसको सदर ए जहाँ बोलते थे, सदर असुदूर, बेसिकली डेल्ट विद द रिलीजियस मैटर्स एंड इंडोमेंट्स। फिर हो गया सहना ए पिल, है ना, बेसिकली सुप्रिटेंडेंट ऑफ रॉयल एलिफेंट, हो गया। फिर हो गया वकील ए दहार, बेसिकली कंट्रोलर ऑफ रॉयल हाउस होल्ड, हो गया। देन आफ्टर वजीर चीफ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस, हो गया। फिर आमिर हो गया गवर्नर। फिर हो गया साहिब ए दीवान, ई दीवान बेसिकली मेंटेन करता है अकाउंट्स ऑफ द प्रोविंसेस। फिर हो गया सिकदार, बेसिकली द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ लैंड मेजरिंग ऑफ ए सिख, ओके, मेजरिंग ए सिख। फिर नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक टर्म्स, दैट इज द नाजिर और Wakuf, that is the official responsible for collecting revenue in the provinces. Next is the Iqtadar. Iqtadar is the holder of the land revenue assignment, है ना। Next is the Iqta is quite important, है ना। It is asked multiple times in previous year questions, okay। So you have to remember the Iqta. Iqta is basically रेवेन्यू असाइंड सिस्टम था दिल्ली सल्तनत और इस्लामिक एम्पायर का, वेयर मिलिट्री ऑफिसर्स एंड गवर्नर्स were granted the right to collect taxes in exchange for services and troops। तो बेसिकली इकता था ना मिलिट्री का ना, मतलब कि बोल सकते हैं दिल्ली सल्तनत और इस्लामिक एम्पायर्स के टाइम की थी। इसमें मिलिट्री ऑफिसर्स और गवर्नर को लैंड ग्रांट की जाती थी, जिसमें वो टैक्स कलेक्ट करते थे, और साथ ही वो ट्रूप्स और ना सर्वेंट्स को, सर्विस को, मतलब कि ट्रूप्स को, फिर हॉर्सेस को मेंटेन करते थे, आर्मी मेंटेन करते थे बेसिकली, है ना।
नेक्स्ट इज द जजिया, जजिया इज द टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स हो गया। फिर खराज हो गया, मतलब कि खारज हो गया, खारज हो गया बेसिकली लैंड टैक्स हो गया। देन आफ्टर द खाम्स हो गया, वन फिफ्थ ऑफ द लूटेड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द वॉर, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ओके। फिर हो गया जाकत, जाकत इज बेसिकली टू and 2.5% of the income of the Muslim, which was spent for the welfare of Muslim subject and their religions, that is जाकत। फिर हो गया सार, that is their irrigation tax, okay। So next is the Mamluk. Mamluk is basically is owned or slave, a military caste. Okay, उसको मामलूक बोलते थे। सुल्तान, सुल्तान हो गया, किंग हो गया। देन आफ्टर गो है ना, गुरी हो गया, एक प्लेस इन ईरान हो गया। लाख बक्स, गिवर ऑफ द लाख्स ऑफ डोनेशन, उसको मतलब कि उसको बोलते थे लाख बक्स। इट्स a ruler of Delhi Sultanate. I am not able to recall the name. Please read it from Google and comment in the comment and tell me in the comment section. Okay. So next is the Quiet ul Islam, that is the might of the Islam mosque. Okay. Next is the Araidin ka Jopra, that is the most constructed in the 60 hours. That is the Araidin ka Jopra. That is, I think, in the areas of Ajmer, Rajasthan. Okay. I am not sure, दैट इज आई एम गेसिंग दैट, ओके। अजमेर शरीफ के पास में होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट इज द मुकद्दम और चौधरी, बेसिकली द विलेज हेडमैन, ओके। नेक्स्ट इज द सिक्स एंड परगनास, बेसिकली यूनिट्स ऑफ प्रोविंसेस। फिर हो गया जावा बीट, जावा बीट इज द सुल्तान्स ओन रेगुलेशंस ऑफ सप्लीमेंट मुस्लिम लॉज। फिर हो गया खाज ए सिकंदरी इज द टाइप ऑफ मेजरमेंट फॉर द यार्ड, दैट इज द खाज ए सिकंदरी। फिर हो गया तंका, टंका इज बेसिकली सिल्वर कॉइन को बोलते थे। फिर जिंतल कॉपर कॉइन को बोलते थे। फिर आधा कॉइन हो गया 50% जिंतल, 50% जिंतल जितल हो गया। फिर हो गया खलीसा इज द लैंड अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सुल्तान, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। फिर इनाम हो गया द लैंड ऑफ फॉर रिलीजियस लीडर इंस्टीट्यूशंस, उनको इनाम के तौर पे दिया जाता था, दैट इज एज ए गिफ्ट, ओके। फिर इक्तादार हो गया, प्रोविंशियल गवर्नर को इक्तादार बोलते थे। फिर तुर्कान है चहलगानी, बेसिकली ये क्लास 40 पावरफुल है ना मिलिट्री लीडर्स को तुर्कान है चहलगानी, है ना, बोलते थे। फिर हो गया पर्दा इज बेसिकली प्रैक्टिस ऑफ सैल्यूटिंग वीमेन हो गया। जिले इला इज बेसिकली गॉड्स शेडो ऑन द अर्थ हो गया। फिर हो गया नीबा, नियाबात ए खुदाई, बेसिकली रिसिपिएंट ऑफ डिवाइन ग्रेस बोलते थे। नसीर आमिर उल मोमिन, बेसिकली क्या है ना, खलीफ्स राइट हैंड को बोलते थे, राइट हैंड मैन होता था उसको बोलते थे नासिर अमीर उल मोहिन, सॉरी मोमीन, ओके। नेक्स्ट इज द नवरोज, नवरोज इज बेसिकली क्वाइट इंपॉर्टेंट है, पर्सियन फेस्टिवल था। दीवान ए विजारत बेसिकली फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है। दीवान ए अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट हो गया। फिर हो गया सिजदा इज द प्रोस्ट्रेशन हो गया, है ना, मतलब कि सिजदा ग्रीटिंग्स, है ना। पाबोज भी किसिंग द सुल्तान्स फीट, वो भी एक ग्रीटिंग्स का पार्ट थी। फिर हो गया जिमी इज द प्रोटेक्टेड पीपल अंडर द मुस्लिम रूल को जिमी बोलते थे। फिर हो गया अरेबेस्क्यू इज बेसिकली जियोमेट्रिकल एंड फ्लोरल डिजाइंस ऑफ द इंस्क्रिप्शन। फिर हो गया बंजारास, बंजारास इन टूडेज टाइम ऑल्सो यूज फॉर द पीपल, फॉर द नोमेडिक पीपल्स, है ना, इन पार्ट ऑफ राजस्थान, ओके। सो बेसिकली बंजारा नोमेडिक trading and pastoral community that played a vital role in medieval Indian economy, okay। So next we are doing towards the moving towards the Mughal period, okay। So Mughal period, we will start with the Mughal period, okay, that is the Suba. The term is the Suba, that is the provincial highest tier ruled by the Subedar, that is the governor, that is the Suba. Next is the Sarkar. Sarkar is basically district middle tier headed by the Fauzdar, military officer, or Amal Gujar, that is the revenue chief. फिर होगा परागना इज बेसिकली तहसील और सब डिस्ट्रिक्ट होता था, दैट इज द सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, मैनेज बाय सिकदार और रेवेन्यू ऑफिसर एंड क्विंगो, दैट इज द रिकॉर्ड कीपर, क्विंगो, ओके। So इसमें you have to remember the sequence that asked in the previous year paper in civil services, but it may be asked in your upcoming examinations such as CDS and CAPF also, है ना। Next is the daroga e dag choki, basically officer in charge of imperial post
also known as the daroga, a dag chowki. Okay. Next is the diwan. He is responsible for all income and expenditure controlled over khalisa and jagir. फिर हो गया दीवान ए बायूतात. ओके. The who maintained रोड एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, उसको बोलते हैं दीवान ए बायूतात. फिर हो गया मीर बख्शी इज द हेडेड मिलिट्री डिपार्टमेंट नोबिलिटी इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस एजेंसी. फिर हो गया मीर मनसी. मानसी इज बेसिकली रॉयल करस्पॉन्डेंस था. मीर समन इज इंचार्ज ऑफ इंपीरियल हाउस होल्ड हो गया था, उसको कारखाना बोलते थे. मीर समन काफी इंपॉर्टेंट है. देन आफ्टर द मीर ए अर्ज, that is the officer in charge of petition. That means urge is related to petition, so that is also related to petition. फिर हो गया दीवान ए बरीद, basically इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था. दीवान ए इंसा इज कस्टोडियन ऑफ, that is the गवर्नमेंट पेपर से रिलेटेड है. फिर दीवान ए गाजा, गाजा इज बेसिकली जस्टिस डिपार्टमेंट हो गया. दीवान ए रसलत इज फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट हो गया. फिर दीवान ए समन, दैट इज द डिपार्टमेंट इन चार्ज ऑफ रॉयल हाउस होल्ड हो गया. फिर दीवान ए वजरत इस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस हो गया. बक्सी हो गया फिर मिलिट्री से रिलेटेड, इन चार्ज ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट. सदर सुदूर क्वाइट इंपॉर्टेंट, बक्सी सदर सुदूर. सदर सुदूर इज रिलीजियस एडवाइजर टू द किंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रॉयल चैरिटी एंड चीफ जस्टिस ऑफ एम्पायर. फिर हो गया सिपाह सलाहकार, बेसिक सालार बेसिकली द हेड ऑफ द चीफ हो गया था. फिर अमल और अमल गुजार इज द रेवेन्यू कलेक्शन. फिर आमीन और कुआंगो बेसिकली द है ना रेवेन्यू ऑफिशियल्स को बोलते थे. फौजदार इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द विलेज. ओके. नेक्स्ट इज द मुहतसी, बेसिकली द सेंसर ऑफ पब्लिक मोरल होता था. फिर हो गया मुहसरी पे मामलुक, सॉरी मुंह मालिक, मुंह मलिक इज द अकाउंटेंट जनरल हो गया. फिर मुस्ता पे मुंह मलिक इज द ऑडिटर जनरल हो गया. फिर हो गया काजी उल कुजात, कुजात. ओके. दैट इज द चीफ ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट. सदर सुदूर, सदर उस सुदूर इज इन चार्ज ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंडोमेंट. वजीर हो गया हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट. दीवान अर्ज हो गया मिलिट्री डिपार्टमेंट. सराई हो गया लॉन्जिंग फैसिलिटी. ओके. जो कि प्रोवाइड की जाती थी ऑन द रोड्स और ऑन द पाथ्स फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल. सो बेसिकली ये शेरशाह ने बनाया था, आई थिंक. ओके. फिर सहाना हो गया, फिर कस्टोडियन हो गया, फिर दाम हो गया, कॉपर कॉइन हो गया, कोटवाल मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो गया. मुकद्दम इज द हेडमैन, पटवारी इज द अकाउंटेंट, सिकदार इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मुंसिफ इज द जस्टिस, फोटेदार इज द ट्रेजर, कारकून इज द अकाउंटेंट, पाटा इज द अमाउंट ईच पीजेंट हैड टू पे, दैट इज द पाटा और पट्टा. फिर हो गया क्वालियत, बेसिकली डीड ऑफ एग्रीमेंट, उसको क्वालित बोलते थे. नेक्स्ट इज द मराठास, देन आफ्टर विजयनगरा, एंड वी विल अबाउट टू फिनिश दिस. ओके. सो मराठास एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स हो गया प्रांत, दैट इज द प्रोविंस. फिर हो गया पेशवा, दैट इज द मुख्य प्रधान, उसको पेशवा बोलते थे. फिर हो गया मुजमदर इज द अमात्या. ओके. दाबिर को सुमंत, सुमंत को दाबिर बोलते थे. फिर हो गया वके नावीज, बेसिकली मंत्री होता था. पंडित राव हो गया सदर हो गया. फिर हो गया सूर नावीस, बेसिकली सचिव को बोलते थे. फिर सारे नौबत इज सेनापति. पटेल हो गया विलेज हेडमैन, जो कि इंपॉर्टेंट है. फिर हो गया सिलाहदार इज द सोल्जर. हजार मांजिलस इज बेसिकली कोर्ट ऑफ द किंग. और फडनीस इज बेसिकली डेप्यूटी ऑडिटर. एंड फिर हो गया चितनीस इज बेसिकली करस्पॉन्डेंस क्लर्क हो गया. फिर हो गया बारगीज इज बेसिकली होस्टमैन हु विच वर पेड फॉर द फ्रॉम द स्टेट एक्सचेंज, उनको बारगीज बोलते थे. फिर हो गया चौथ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से. 1/4 और 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू टू बी पेड टू मराठास टू अवॉइड द मराठा रेड. ओके. फिर हो गया सरदेश मुखी, ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. It may be asked in upcoming examination related to this in such a way that ki how that what is the like from the which part of the country, or for what is the चौथ and सरदेश मुखी, ये किससे रिलेटेड है, ये भी आ सकता है. सो बेसिकली मराठा से रिलेटेड टर्म्स है. सरदेश मुखी इज द एडिशनल लेवी ऑफ 10% ओवर लैंड्स ऑफ महाराष्ट्र विच फॉर्म पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर. Okay, but
over which Maratha claim hereditary rights. Okay, फिर हो गया काथी, काथी is basically the unit of measurement. फिर हो गया कारखानी, कारखानी is basically commissionary. Next we are moving toward the Vijayanagara Empire's administrative terms. So basically unit of administration gram था, village headman is by it is headed by Goda, है ना, गोदा. और नेक्स्ट इज द नाडू, नाडू इज द डिस्ट्रिक्ट हेडेड बाय द नाडू प्रभु, नाडू प्रभु. ओके, फिर हो गया मंडलम, मंडलम इज द प्रोविंस हेडेड बाय द मंडलेश्वर. ओके, फिर हो गया महा नायक, नायका, महानायकाचार्य, महानायकाचार्य is basically an officer or in the contact point between the head of between the village and the central administration. That is quite important. Okay, फिर कॉइन्स हो गया, फिर हो गया वरहा एंड पगोडा गोल्ड कॉइन, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से. तार ऑल्सो इम्पोर्टेंट है, जितल ऑल्सो कॉपर से, फनम इज ऑल्सो रिलेटेड है. फनम आई थिंक यूपीएससी के कोई भी है ना प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा भी जा चुका है. सो फनम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. दैट इज द चीप गोल्ड coin of Vijayanagara Empire was the Varha and Pagoda. The Preta was the half of Varaha and Phanam was the 1/10 of the Partha. Okay. Next is the Naika, sorry, Naik, Nainakara system. Nainakara system is the system of provincial administration हो गया. फिर हो गया अयंकार is basically system of village administration हो गया. नायक हो गया governor who administered each province हो गया. फिर हो गया राजुलू, और Ratchavaru is basically generally associated with the ruling dynasty, assisting them in the matters of state warfare. फिर हो गया तलाज, तलाज बेसिकली सब डिस्ट्रिक्ट हो गया. फिर हो गया मातिका, रातू, रातालू एंड वेस्याज बेसिकली मर्चेंट्स हु कैरीड ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स. सिस्ट हो गया लैंड टैक्स हो गया. फिर हो गया विस्प, सॉरी विप्रुलू, विप्रुल इज ब्राह्मण से रिलेटेड हो गया. फिर हो गया नल वजातिवारू, बेसिकली सुद्रा से रिलेटेड हो गया. फिर हो गया कई कॉलर्स बेसिकली वेवर्स हो गया. फिर हो गया बेसगा, बेसगा इज द फोर्स लेबर. राजुलू इज बेसिकली क्षत्रिय. फिर हो गया विप्रा विनोदियन इज बेसिकली आर्टिसंस. एंड देन आफ्टर द सहा गमना इज बेसिकली रिलेटेड टू सती. फिर हो गया अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज बेसिकली द 8 सेलिब्रेटेड पोइट ऑफ तेलुगु, है ना. दैट इज द पेदाना, दैट इज द मनु चरितम एंड तिमाया बेसिकली परिजाता, अप्रनामा एंड भट्टा मूर्ति. फिर हो गया दुर्जाति. फिर हो गया मालन, राजू रामचंद्र. फिर हो गया सुरानो. फिर हो गया तेनाली रामकृष्णन. फिर हो गया पांडुरंग महामात्या, बेसिकली तेनाली रामकृष्ण थे. ओके, नेक्स्ट इज द सूफी एंड भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड, जो कि एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू विल डायरेक्टली फाउंड 2 to 3 questions. And in Vijayanagara Empire, one of the important perspective point is the Mahanavami Dibba. Mahanavami Dibba. That is quite important, very very important. That is very very crucial part, and you can't go with the without knowing the Mahanavami Dibba. You may find that in previous year paper, in every second paper you will find question in the question related to Mahanavami Dibba, whether it is CDS, CAPF, NDA or state services. Every exam asks about the Mahanavami Dibba, and you will every time you will find it misleading options. Okay, so please remember about the Mahanavami Dibba, and please इसको 3 बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ. Mahanavami Dibba. What is Mahanavami Dibba? Mahanavami Dibba is the prize platform used for the religious workings, okay, and workshops. Okay, that is the Mahanavami Dibba. So you have to remember this and tell me in the comment section about the Mahanavami Dibba. And asked the previous year papers, in previous year paper question related to Mahanavami Dibba that are asked, you have to comment them down so that everyone can get benefit out of this. Okay, नेक्स्ट इज द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट. भक्ति एंड सूफी मूवमेंट से रिलेटेड टर्म्स देख लेते हैं. भक्ति मूवमेंट इज बेसिकली हिंदुइज्म रिफॉर्म मूवमेंट ड्यूरिंग मिडाइवल पीरियड था. सूफी इज बेसिकली मेजेस्टिकल
मिस्टिकल हो गया, मूवमेंट ऑफ इस्लाम हो गया, फिर नैनार इज द डिवोटीज ऑफ शिवा दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नैनार्स के बारे में यू हैव टू रिमेंबर वन, मतलब कि यू हैव टू रीड देम, रीड अबाउट द नैनार्स इन डिटेल। अलवार्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है, अलवार्स इज डिवोटीज ऑफ शिवा। फिर हो गया तिरुमरई, बेसिकली कंपाइलेशन ऑफ हिम्स ऑफ नयनारास by the highest priest of Raj Raja Chola first and Namibiyandar Nambi. Okay, then after Divya Prabandh is basically a compilation of the hymns of Alvar Saint, a poet. That is important. This was asked in UPSC previous year papers. Please remember about the Divya Prabandhan किससे related है? Basically it is related to the Alvar Saint poets, है ना? Hymns है, compilation of hymns है। फिर हो गया निर्गुण भक्ति इज द बिलीव इनविजिबल फॉर्मलेस गॉड विदाउट आर्टी, है ना, दैट इज द एट्रीब्यूट दैट इज रिलेटेड टू द कबीर। फिर हो गया सुगम सगुन 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 इज बेसिकली बिलीव्ड इन गॉड। सगुन निर्गुण का अपोजिट है, एंटोनियम बोल सकते हैं। सगुन इज बेसिकली बिलीव इन गॉड विथ फॉर्म एंड एट्रीब्यूट। ओके, फिर हो गया Advait Vedanta. Non-dualism is basically God and created world is one, and the individual soul is not indifferent from the from Brahman. Okay. Then after the Visist Advait Vedanta and qualified monism, basically the reality of one, but differentiates into the multiplicity of the forms, and the ultimate reality Brahman is inseparable from its attributes soil and matter. फिर हो गया भेद Abheda. Abheda is basically the God, the soul, and the world are simultaneously identical yet distinct. Okay, फिर हो गया द्वैता और dualism, basically where the divinity is separate from the human conscious or soul, that is the द्वैता और dualism. फिर हो गया फाना is related to the spiritual merger of devotee with the Allah, that is the फाना is quite the some odd term that you have to remember. फिर हो गया इस इंसान ए कामिल, इंसान ए कामिल इज द परफेक्ट ह्यूमन विथ ऑल गुड वर्च्यू, दैट इज द इंसान ए कामिल। ओके, फिर हो गया जिक्र तोबा इज बेसिकली रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड ऑल द टाइम, दैट इज द अबाउट द जिक्र यानी कि मतलब कि किसी चीज में बात करना, किसी चीज का जिक्र करना, है ना। फिर हो गया जिक्र तोबा इज बेसिकली रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड ऑल द टाइम। ओके, फिर हो गया वाह दातुल वजूद, बेसिकली ये हो गया वन गॉड फॉर द एंटायर यूनिवर्स, यूनिटी ऑफ गॉड एंड बीइंग हो गया। फिर सामा हो गया बेसिकली स्पिरिचुअल डांस एंड म्यूजिक टू प्रमोट देयर कॉन्सेप्ट थॉट, music is considered un-Islamic by some. Okay, so that is about the important terms from the ancient and medieval history. So in 3 sessions we are done with the terms related to the ancient medieval history. So in next lectures we will going to discuss about the literatures related to the ancient and medieval history, that you may going to find one or two direct question in your upcoming CDS and CAPF examination and state PCS examinations such as RAS, UPPCS, and SP Haryana PCS. You will find direct questions from the literature of the ancient and medieval history. So please remember them and please follow this series religiously. I will guarantee you that you will not going to face any backlash in your serious examination because of you are spending this 1 hour or half an hour in this series. So I will suggest you that you should follow this series completely and religiously, and also you have to make notes out of this. If you are not going to not interested in making notes or creating notes from these classes, I will suggest you that you can check out our Telegram channel where I will provide you with the PDFs of these terms. The PPT I will provide there. So please join the Telegram channel from the description. The link will be provided there, and you can join in the mentorship program, that is the Mark Dasak mentorship program. In this program you will get a right strategy, a right guidance, and right material for your upcoming examination. You will there is no need for you to go here and there and searching the material and strategy for your upcoming examination. No, we will teach you that we will
give you the right strategy that you have to adopt for your upcoming examination. So that is for our margdarshak platform, है ना. So we will for today that is enough, and from tomorrow we will go with the important books and authors. Okay, so for today, goodbye, we will meet tomorrow.